الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز بزرگ اور دوستو، آج 20 دسمبر 2024 بروز جمعہ آپ حضرات سے کرسمس ڈے کے سلسلے میں گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ 4 دن کے بعد تقریباً 25 تاریخ آنے والی ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب یہ 25 دسمبر آتی ہے، جس کو بڑے دن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اس کا تعلق عیسائیوں سے تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ تعلق تو اس کا عیسائیوں سے تھا، لیکن اس کرسمس ڈے کو منانے والے زیادہ تر مسلمان نظر آتے ہیں۔ اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو آج ہم مسلمان فراموش کر چکے ہیں، اور غیروں کی شناخت کو اور ان کی پہچان کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کرسمس ڈے کا دن جب آتا ہے تو مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد عیسائیوں کے ساتھ چرچ کی طرف رخ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر معلوم کیا جائے کہ یہ کرسمس ڈے کیوں مناتے ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس 25 دسمبر میں ہوئی ہے، اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 25 دسمبر میں ہوئی ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتا ہے۔ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں، اگر یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے نہ مناتے تو دوسرے لوگ اپنے بچوں کا برتھ ڈے نہ مناتے۔ ان عیسائیوں کے چکر میں آ کر کے بہت سے لوگوں نے اس خرافات کے اندر حصہ لے لیا کہ برتھ ڈے مناتے ہیں، کبھی اپنا مناتے ہیں، کبھی اپنے بہن بھائیوں کا مناتے ہیں، اور اسی طریقے سے کبھی اپنے بچوں کا منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو برتھ ڈے کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، نہ مذہب عیسائیت کے اندر اس کا تصور ہے۔ یہ جو آج کل عیسائی ہم لوگ دیکھتے ہیں، جن حضرات کو آپ جانتے ہیں، وہ اپنے اصل مذہب پر نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر وہ اصل مذہب کے اوپر ہوتے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیتے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی جو ہے دعوت دی ہے۔ بتایا ہے کہ آخری زمانے کے اندر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، بشارت دی ہے۔ تو اگر وہ اپنے اصل مذہب پر ہوتے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آخری نبی تسلیم کر لیتے۔ اب انہوں نے عیسائیت کے اندر چونکہ رد و بدل کر دی،
اور جو ان کی کتاب ہے انجیل اس کے اندر بھی ترمیم کر دی اور تحریف کر دی. تو مذہب عیسائیت کے اندر جو ہے خود برتھ ڈے منانے کا تصور نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو جب وہ دنیا سے تشریف لے کر کے گئے ہیں آسمان دنیا پر، اس کے 300 سال گزر جانے کے بعد کچھ عیسائی پادریوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منانا چاہیے، ان کی پیدائش کا دن منانا چاہیے، اور پھر اس دن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں کچھ نعتیں پڑھی جائیں، کچھ تقریریں کی جائیں. تو چنانچہ کچھ پادریوں نے یہ والا کام شروع کر دیا. چند دنوں کے بعد جو ہے جب انہوں نے یہ محسوس کیا تو یہ تو خوش قسم کی محفلیں ہوتی ہیں کہ سادی سی نعتیں اور غزلیں پڑھی جاتی ہیں، سادہ سمپل تقریریں ہوتی ہیں تو مزہ سے نہیں آ رہا، تو اس کے اندر انہوں نے موسیقی شروع کر دی، میوزک شروع کر دیا. اب نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور ساتھ میں میوزک بھی چل رہا ہے، بج رہا ہے. چند دنوں کے بعد اور بدلاؤ ہوا. اب انہوں نے میوزک کے ساتھ ساتھ جو ہے لڑکیوں کو بھی نچوانا شروع کر دیا. اب لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں. اب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے یعنی یوم پیدائش منانے کے چکر میں کتنے بڑے گناہ وہ کر گئے. ایک گناہ تو یہ کر گئے کہ موسیقی انہوں نے شروع کر دی، اور دوسرا گناہ انہوں نے یہ کیا کہ اس کے اندر ڈانس اور تھرکنا شروع کر دیا. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ اب اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں اور دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر کرسمس ڈے کے موقع پر جتنی قمار بازی کی جاتی ہے اور جتنی شراب نوشی کی جاتی ہے، کسی اور دن میں اتنی نہ تو شراب پی جاتی ہے اور نہ قمار بازی کی جاتی، نہ جوا کھیلا جاتا. آپ دیکھ لینا اٹھا کر کے. تو منانے چلے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے، اور دیکھو کتنی بڑی خرافات کے اندر خود بھی مبتلا ہو گئے، اور ان کو دیکھ کر کے یہ ہمارے مسلمان بھی مبتلا ہو گئے. مسلمانوں کا کیا تعلق تھا ان سے؟ نمازوں کے اندر آتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کبھی تصور کیا کہ ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ سورت پڑھی جاتی ہے جس کو سورت الفاتحہ کہتے ہیں، اور ہر ایک ایمان والے کو یہ سورت یاد ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے. کیا کہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ مجھے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے راستے سے بچا. نماز کے اندر دعا کر رہا ہے کہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے راستے سے بچا، اور جب نماز سے فارغ ہو کر کے باہر جاتا ہے تو پھر یہودیوں کے جیسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، عیسائیوں کے جیسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. مسلمانوں سے ذرا پوچھا جائے کہ یہ برتھ ڈے کا تصور آخر آیا کہاں سے ہے؟ بتاؤ کہاں سے آیا ہے؟ یہ عیسائیوں سے لیا ہے مسلمانوں نے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس چیز کو ختم کیا جائے کہ کرسمس ڈے سے مسلمانوں کا کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، برتھ ڈے سے مسلمانوں کا کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. ذرا اندازہ لگاؤ، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزمان بھی ہے، سید الاولین بھی ہے والآخرین بھی ہے. آپ علیہ السلام تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. آپ علیہ السلام کے صدقے میں اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے. اگر کسی کا برتھ ڈے منانے کا تصور اسلام کے اندر اگر ہوتا تو ایمانداری سے بتاؤ کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوتا؟ بتاؤ. آپ علیہ السلام زمانے کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور پرفتن زمانہ ہے، زمانہ جاہلیت سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے. اتنا خطرناک زمانہ ہے، اور 23 سال کی قلیل مدت میں آپ علیہ السلام نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع کھڑا کر دیا. عرب کے بوریا نشینیوں کو اللہ تعالی سے ملوا دیا، اپنا صحابی بنا لیا، صحابیت کا شرف عطا کر دیا آپ علیہ السلام نے. ایمانداری سے بتاؤ اگر برتھ ڈے منانے کا تصور اگر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے
اور नबूवत मिल जाने के बाद 23 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दारे फानी में तशरीफ रखते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाया। ये सहाबा इकराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले, अपनी जानों को निछावर करने वाले, अपनी बीवी को बीवी ना समझने वाले, अपने बच्चों को बच्चे ना समझने वाले, बल्कि सब कुछ कुर्बान करने वाले ये सहाबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद 100 साल तक जिंदा रहे, 100 साल तक सहाबा मौजूद रहे। तो अगर हुजूर के बर्थडे मनाने का, इस्लाम में बर्थडे मनाने का अगर कोई तसव्वुर होता और ये अगर कोई कीमती चीज होती, तो क्या सहाबा इस चीज को छोड़ देते, क्या हुजूर का बर्थडे ना मनाते? क्या हम सहाबा से ज्यादा, कि जितना वो हुजूर से प्यार करते थे, क्या हम उतना प्यार अपने बच्चों से करते हैं? हुजूर ज्यादा प्यारे हैं या अपने बच्चे ज्यादा प्यारे हैं? हुजूर ज्यादा प्यारे हैं। भाई कोई भी मुसलमान अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बाल बच्चों से ज्यादा, पूरी कायनात से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। अब ये सहाबा इतनी मोहब्बत करने के बावजूद आप देखो जिंदगियों को उठा करके, कि वहां तो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बर्थडे नहीं मनाया। हम मुसलमान क्यों मना रहे हैं? अगर ईसाई इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो उनको करने दो, हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? हम मुसलमान हैं, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। हम बर्थडे नहीं मनाएंगे, इसलिए कि ये बर्थडे मनाना ये ऐसे लोगों की इजाद है कि जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी की है। आप देखो सूरह मरियम उठा करके 16वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन ईसाइयों के बारे में, वकालु इत्तखज़र रहमान वलदा, के लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला के औलाद है। क्या कहते हैं? कि अल्लाह ताला के क्या है? औलाद है। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, बहुत सख्त बात इन्होंने कही है, इतनी सख्त बात कही है, तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। इतनी खतरनाक इन्होंने बात कही है कि अगर आसमान को जज्बात दे दिए जाते तो ये आसमान टूट जाता, जमीन फट जाती, ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। इतनी खतरनाक बात इन्होंने कही है कि अल्लाह ताला के औलाद है। क्या तुम्हें नहीं पता अल्लाह ताला ने क्या फरमाया अपने बारे में? कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह ताला एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला की जात बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है ना उससे कोई जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई शरीक और पार्टनर भी नहीं है। इतनी खतरनाक बात इन्होंने कही है कि अल्लाह ताला की औलाद है। अफसोस की बात है मुसलमानों कि अगर आज कोई हमारी माँ को गाली बक दे, कोई हमारे बाप को अगर गाली बक दे, हम उससे रिश्ते तोड़ देते हैं, दोस्ती का ताल्लुक कता कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हम दोस्त को दोस्त नहीं समझते, रिश्तेदार को रिश्तेदार नहीं समझते, चाहे कोई चाचा हो चाहे कोई मामू हो। अगर उन्होंने हमारे माँ बाप की शान में गुस्ताखी की है, अगर हमारे अम्मा अब्बा को गाली बकी है, तो हम उनसे रिश्ता खत्म करने के बारे में सोचते हैं। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान बहैसियत एक मुसलमान होने के अपने माँ बाप से ज्यादा और तमाम चीजों से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत हम अल्लाह तबारक व तआला की जात से करते हैं। हुजूर से भी ज्यादा मोहब्बत हम अल्लाह ताला की जात से करते हैं। अल्लाह ताला को जो लोग गालियां बक रहे हैं, जो लोग अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, आज मुसलमान उन्हीं के तीर और त्योहारों के अंदर शरीक होने के लिए, क्रिसमस डे मनाने के लिए जो है चर्च की तरफ रुख करता है। अब बताओ, जितने बड़े वो गुनाहगार होंगे उतने बड़े हम गुनाहगार नहीं होंगे? जो अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं, ईमानदारी से बताओ, अगर हम उनके साथ चल करके उन्हीं के त्योहारों के अंदर अगर शरीक होंगे, और वो त्योहार भी कोई जायज और दुरुस्त नहीं है बल्कि बातिल है, वो त्योहार उसके अंदर गुनाह ही गुनाह है, कोई नेकी उस त्योहार के अंदर नजर नहीं आती, उन त्योहारों के अंदर हम शरीक होने के लिए चल देते हैं, तो इससे हमें परहेज करना चाहिए। हम भी परहेज करें, अपने बच्चों से भी कहें, नौजवानों से भी कहें, इसलिए कि मेरठ के मुसलमान जब ये क्रिसमस डे के अय्याम से गुजरते हैं
तो फिर वो सरदने की तरफ जाने की कोशिश करता है। बताओ, रेला पहला होता नहीं होता? यहां पर कितने ईसाई नजर आ रहे हैं आपको? बताओ, मेरठ के अंदर कितने ईसाई हैं, या मेरठ के अतराफ के अंदर जितने भी देहात है, गांव है, कितने ईसाई आपको नजर आ रहे हैं? लेकिन वहां पैर रखने की जगह भी लोग नहीं बताते कि जब 25 दिसंबर आती है तो पैर रखने की जगह भी मौजूद नहीं होती वहां पर, इतनी बड़ी तादाद में। और वहां सरदने के मुसलमान बताते हैं कि बुरके वाली औरतें ज्यादा नजर आती हैं। बताओ, क्या करने के लिए जा रही वहां पर? ये कोई काम धंधा नहीं है, क्या करने के लिए जा रही? तो ये तो क्रिसमस डे की हकीकत थी। इससे आगे बढ़कर के मैं आप हजरात को एक दो बातें और अर्ज कर दूं कि हम मुसलमानों के अंदर जो है ये बर्थडे का निजाम जो है बढ़ता जा रहा है। बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका बर्थडे मना रहे हैं। अब कोई पूछे, अब ये बर्थडे क्यों मनाता है, क्या जरूरत पड़ी है कि खुशी के अंदर कर रहे हैं? तो खुशी में करने वाले तो और भी बहुत सारे काम है, बर्थडे क्यों कर रहे हैं आप? क्यों केक काट रहे हैं आप? क्यों खामेखा लोगों की दावतें कर रहे हैं? यह अजीब तरीन बात है या नहीं है? केक लाते हैं, केक सजाया हुआ है, मोमबत्ती उसके ऊपर लगा देते हैं, अब उसे जला रहे हैं और फिर बच्चे को बुलाते हैं, हाथ में छुरी देते हैं और अब उसे मोमबत्तियों को बुझाते हैं। देखो कितने पागल हैं भाई, जब बुझानी थी तो जलाने की जरूरत ही क्या थी? ये देखिए, ये अंग्रेजों ने, गोरों ने दी ना ये चीज है, वो खुद भी बावले और तुम्हें भी बावला बना रहे हैं, खुद भी बावले हैं। उनसे कोई पूछे बेवकूफों से, अपना अकल के पट्ठो, ये बताओ जब तुमने इसको बुझानी थी तो तुमने इसको जलाया क्यों था? क्यों जलाते हैं इसको? और केक के ऊपर रख करके जला रहे हैं, यह अजीब बात है। अब बुझा रहे हैं उसे और अब काट के लोगों को खिला रहे हैं, कितनी अजीब बात है। और पूछो भाई हरकतें क्यों कर रहे हैं? जी खुशी में कर रहे हैं। तो खुशी में करने के तो और भी बहुत सारे काम हैं, यही अनोखा खुशी का काम रह गया। और मैं कहता हूं कि अगर थोड़ा सा हम तसव्वुर करें, अपनी मौत और जिंदगी के बारे में सोचें, तो पता चल जाएगा कि ये खुशी का मकाम है या डरने का मकाम है, पता लग जाएगा। अल्लाह मियां ने जो एवरेज उम्र दी है हम लोगों को, वो 60-70 साल की उम्र है जो उम्मत मोहम्मदिया को मिली हुई है, दरमियानी उम्र 60 या 70 साल की। अब ये साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल के हो गए, अब केक काट रहे हैं। अब इन भाई साहब से कोई पूछा, अब क्यों काट रहा है ये केक? तेरी जिंदगी का 1 साल अगर बढ़ रहा हो तो बात समझ में आती है कि केक काट ले और खुशी मना ले। तेरी जिंदगी का 1 साल घट रहा है या बढ़ रहा है? जोर से बोलो। घट रहा है तो घटने के मौके पर केक काटा जाता है। आ रही है बात समझ में? भाई जिंदगी घट रही है तो ये गम का यानी गम के इजहार का दिन है या ये खुशी का दिन है? गम के इजहार का दिन है। तो ये तो अजीब सी बात मालूम होती है। इसको आप एक मिसाल से समझें। किसी आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया हो या वैसे ही वो केस में पकड़ा गया हो और अदालत ने उसको सजाए मौत सुना दी हो, कह दिया कि इसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब उसे जेल खाने के अंदर ले जाकर के बंद कर दिया। अब भाई साहब का जो है कुछ दिनों के बाद दिन आ गया, बर्थडे का जन्मदिन आ गया। अब उस जन्मदिन वाले दिन जो है उसके घर वाले केक वेक लेकर मोमबत्तियां सजा के उसकी खिदमत में ले जाकर के रख दें जेल के अंदर। ले भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, बुझा ये मोमबत्ती जो है बुझा, मार फूक इसके ऊपर। अब ईमानदारी से बताओ वो बेचारा जो है अफसोस करेगा या उसको खुशी होगी? बताओ, कहेगा दिमाग खराब है तुम्हारा, यहां मुझे दिन काटना भारी पड़ रहे, मेरा वक्त जो है वो फांसी की तरफ बढ़ता चला जा रहा और ये जो है मेरे सामने केक ला करके रख रहे पार्टी इसको, खुशी का दिन है ये तो गम के दिन है। मैं मौत की तरफ जा रहा हूं और इन्हें खुशी सूझ रही, ये मुझे केक ला के दे रहे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई जज साहब ने जो सजा सुनाई है उसका एक वक्त मुतय्यन हो गया कि भाई 14 साल के बाद या 15 साल के बाद या 10 साल के बाद इसको फांसी दी जाएगी। तो जज साहब ने जो सजा सुनाई है सजाए मौत, उसका एक वक्त मुतय्यन है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी मौत का जो वक्त मुतय्यन किया है वो हमें मालूम नहीं है किस वक्त में आ जाए। वहां तो मालूम है, वहां मालूम है कि 10 साल के बाद आएगी, 15 साल के बाद आएगी, फांसी लगेगी। लेकिन यहां पर मालूम नहीं है। यहां तो किसी भी वक्त में आदमी लौट तो आ भी सकता है, लेकिन उसको पता चल गया कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है 10 साल तक या 12 साल तक जिंदा रहूंगा और उसके बाद जो है मेरी जिंदगी का चराग गुल कर दिया जाएगा फांसी के जरिए से।
लेकिन यहां पर कोई आदमी नहीं सोच सकता, किसी भी वक्त में उसको मौत आ सकती है। तो वहां से ज्यादा यहां डरने की ज्यादा जरूरत है। आ रही है बात समझ में? तो जब वहां पर कोई भी अक्लमंद आदमी अपने किसी ऐसे भाई जो जेल के अंदर बंद हो उसके लिए केक लेकर के नहीं पहुंच सकता उसके जन्मदिन के दिन, तो फिर अपने बच्चों का जन्मदिन मनाता क्यों है? बात समझ में आ गई? ये खामे खा की चीजें हैं, खामे खा की, और ये समाज के अंदर बढ़ती चली जा रही है। और ईसाइयों से इसका ताल्लुक है, क्योंकि उन्होंने क्रिसमस डे मनाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाया, तो आम मुसलमान भी अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, उसको शुरू कर दिया। अब अगर हकीकत में ये गैरों की नक्काली है और हकीकत में ये ईसाइयों से मुशाबहत है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो आदमी जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसका अजर उसी के साथ कर देगा, उन्हीं में से उठाया जाएगा। अब काम मुसलमानों वाले करोगे तो इंशाअल्लाह कयामत में मुसलमानों के साथ उठाए जाएंगे, और अगर काम ईसाई वाले करेंगे तो ईसाइयों के साथ हशर होगा या नहीं होगा? बताओ जोर से, इनके साथ हशर होगा जिनके तरीके पर जिंदगी गुजार करके गए हो। अब ये बर्थडे का मनाना या क्रिसमस डे का मनाना, अगर इन चीजों को हम मुसलमानों ने बहैसियत एक मुसलमान होने के नाते नहीं छोड़ा तो फिर किसके साथ हशर होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खतरनाक वईद सुना दी कि उन्हीं के साथ हशर हो जाएगा जिनकी मुशाबहत इख्तियार करके तुम दुनिया से रुखसत हुए हो। तो कहीं से भी इसका जवाब नहीं मिलता। इससे आगे बढ़ करके आप देखें, ये तो 2, 4, 5, 7, 10 साल के बच्चे जब हो रहे हैं, जब मनाए जा रहे हैं बर्थडे, अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अनोखे बच्चे, अभी डिलीवरी हुई है, अब से पहले तो दिमाग खराब हो रहा था, कभी डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया, कभी कुछ बता दिया, अभी औरत के दर्द हो रहे थे, समझे, सारा परिवार परेशान था। इमाम साहब के पास, मौलाना साहब के पास तावीज लेकर के आ रहे थे, जी कोई धागा पढ़ दो, अजी गुड़ पढ़ के दे दो, अजी बादाम पढ़ के दे दो, समझे। अब बेचारे अल्लाह ताला ने अगर डिलीवरी करा दी और नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बच्चा भी बच गया और मां भी बच गई, तो अब देखो कैसी तूफाने बदतमीजी बपा करते हैं। अब जब हॉस्पिटल से अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं ना, अपनी बीवी को, तो घर के अंदर तो उनका ऐसे ही सिंपल तौर पर दाखिल होना हराम है। अगर सिंपल ऐसे ही दाखिल हो गए तो ये तो हराम क्या इर्तिकाब कर लिया। ऐसे ही दाखिल नहीं हो रहे, बल्कि जो घर के अंदर जो छोटे देवर हैं या दूसरे और लोग हैं, बाकायदा तौर पर वो भाभी को जरा बाहर खड़ा कर देंगे और वो नन्ना मुन्ना उनकी गोद में देंगे। अब वो अंदर खुद खड़े हो जाएंगे, गुब्बारे उब्बारे लगे ना, वो वीडियो बनती भी आ रही जरा भाभी की, समझे। 1 साल का बच्चा हो गया, 2 साल का बच्चा हो गया, अभी तो ये देखते आ रहे थे कि उनके केक कट रहे थे, अब ये हाथों हाथ के बच्चे माँ जो है पकड़ करके केक कटवा रही, और फिर क्या करते हैं, उस वीडियो को उठा करके जरा उसको साफ सुथरी करके, क्या कहते हैं उसको, एडिटिंग करके जरा उसे स्टेटस पे लगाते हैं, समझे। और फिर बार बार देखेंगे कितने लोगों ने देख लिया, कितनों के लाइक आ गए। बात समझ में आ रही है? ये देखो कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। कोई तुफ है, बदतमीजी की एक हद होती है। अभी जब तुम्हारे यहां बच्चा नहीं हुआ था और ये औरत दर्द जैसे तड़प रही थी, तो सारे के सारे परेशान थे। अब अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें औलाद से नवाज दिया तो होना तो ये चाहिए था कि सजदे शुक्र करते, अल्लाह ताला को सदके करते, अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करते, गरीबों को खाना खिलाते, होना तो ये चाहिए था। लेकिन एक बड़ी खुराफात के अंदर मुब्तला हो गए। इसलिए मुसलमानों, इन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। और ये चीजें ज्यादातर औरतों के अंदर होती है, और औरतें ज्यादातर अपने मर्दों को, अपने शोहरों को मजबूर करती हैं। उनसे मजबूर होने की जरूरत नहीं है। उन्हें बताओ कि ये तरीका ईसाइयों का तरीका है, मुसलमानों का इस तरीके से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। करेंगे ना इंशाअल्लाह इन बातों के ऊपर अमल। अगर किसी ने इस तरह का बर्थडे मनाया हो तो वो तौबा करें, और जिन्होंने आगे कोई प्रोग्राम सोच रखा हो तो वो अभी से ही अपने प्रोग्राम को खत्म कर दें कि जब ये जायज नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अकल के पट्टे एक से एक फिर रहे हैं, जिन्हें अपनी पैदाइश का दिन भी पता नहीं है ना। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, पता नहीं कौन से साल में और कौन से महीने में पैदा हुए। अब खामे खा 15-20 साल के बाद सूझी के यार मेरा भी बर्थडे होना चाहिए, जनवरी की फलानी तारीख को बस बर्थडे हो रहा। और किसी का तो साल में 2-2 बार भी हो जा। अरे बात समझ में? यानी देखो कैसे अकल के फिरे हुए हैं, बर्थडे मना रहे, तारीख का पता नहीं है, लेकिन चूंकि मस्ती करनी है ना, सूझी हुई है मस्ती, तो अपना खुद ब खुद जो है कोई भी दिन
तय कर दिया और अब क्या कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे, केक वेक काट रहे। ये खामेखा की चीजें हैं, इनसे परहेज करने की जरूरत है। आकाए मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ लाए और दिन जो था वो पीर का था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर के दिन दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए। यह आपने सुन रखा होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के रोज रोजा रखा करते थे। सही रिवायतों से साबित है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे। किसी साहबी ने मालूम कर लिया कि या नबी अल्लाह पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया कि इस दिन में पैदा हुआ था। अरे बात समझ में, देखो वहां तसव्वुर क्या है, यानी पैदा हो रहे हैं तो रोजा रखा जा रहा है और यहां पैदा हो रहे हैं तो गाने बजाए जा रहे हैं। यही तो होता है ना सालगिरह के मौके पर।